नमस्कार। हमारे सभी गेस्ट उपस्थित हो चुके हैं। हम जल्द ही कार्यक्रम को शुरू करने वाले हैं। वर्चुअल के लिए और फिजिकल ऑडियंस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो फिजिकल ऑडियंस में सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने फोन्स को या तो वाइब्रेशन या साइलेंट मोड पे कर लें। सभी वर्चुअल वालों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी। संबोधन के समय पर जब भी स्पीकर्स का संबोधन हो, कृपया अपना माइक जो है उसको म्यूट पर रखें। क्या आपके जो भी प्रश्न हो कृपया उनको चैट बॉक्स में लिखें और जब आपका नाम पुकारा जाए आप अपना माइक अनम्यूट करके संक्षिप्त में अपना प्रश्न पूछें। जिन भी से प्रश्न पूछना हो उनका नाम उल्लेख कर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम दो दो करके प्रश्न लेंगे, दो वर्चुअल ऑडियंस से, दो फिजिकल ऑडियंस से, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन।
बैठे रहना। Please settle down. Our guests are here. May I now welcome our distinguished guest, Shri Ram Madhav ji, Shri Narottam Mishra ji, and Shri A.K. Chauhan ji on the stage. Please. Namaskar, everyone. May I have
Alok Dangas ji, National Executive Member, Youth Wing, BJP, on stage to please welcome Ram Madhav ji. May I have Megha Parmar ji, Mountaineer, Brand Ambassador for Beti Bachao, Beti Padhao, on stage to please welcome Dr. Narottam Mishra ji. May I have Anupam Chokse ji on stage to please welcome Sir A.K. Chauhan ji. Light and lightness represents the positive and the good. That way, the presence of light or fire in Sanskrit, Agni, will ensure success. Lighting a lamp before ceremony spreads divine grace. I request our guests to please light the lamp. May I ask my colleague Rohit to please come and introduce the Madhya Pradesh Thinkers Forum. Thank you. Namaskar, everyone. At the very outset, let me welcome you all to this first ever semi-virtual Young Thinkers Meet being organized by the MP Thinkers Forum. Let me also take this opportunity to welcome our distinguished guest, Sri Ram Madhav ji, Sri A.K. Chauhan ji, and Dr. Narottam Mishra ji for taking out time from their busy schedule and being with us. MP Thinkers Forum is not merely a forum, but an idea to have a connected network of young individuals who are not only from the state of Madhya Pradesh, but who also think for Madhya Pradesh. We at MP Thinkers Forum want to provide a platform to have meaningful cross-cultural exchange of ideas. We not only aim to discuss, deliberate these ideas, but also at the same time want to provide an equal space for meaningful dissent. When we say dissent, there is a lot of apprehension with the word dissent and disagreement. But the best only comes out when a disagreement is turned into an agreement through a dialogue process. We at MP Thinkers Forum want to initiate that dialogue process. I am honored and delighted to inform this August gathering that we received an incredible response during the registration process, and we are happy that we have a group of around 100 young individuals from across the state who are joining us virtually. We have a selected physical audience which is present here. We have young business leaders, young political leaders, young professionals who are leading in their different professional fronts. We have people from different backgrounds, like some are environmentalists, some are public health experts. Likewise, we have people from all fronts, with this aim that this network converts into an institution which is not only from Madhya Pradesh. As I said earlier, it also thinks for Madhya Pradesh, but also acts within Madhya Pradesh. With this thought in mind,
Without taking much time, let me take this opportunity to request the distinguished guest to kindly launch this MP Thinkers Forum and turn this idea into a reality. I request the distinguished guests to kindly launch. This is the concept note of the MP Thinkers Forum, which is being launched today. We hope this turns into an institution. Thank you so much, sir. Thank you, Rohit ji. With this, we now move on to our inaugural address by Dr. Narottam Mishra ji. Though he and rest of the dignitaries on stage do not need any introduction, but for the record, to start with, may I now introduce Dr. Narottam Mishra ji, who is an Indian politician who is presently serving as the Cabinet Minister of Home Affairs in Madhya Pradesh. He represents Datia constituency in state of MP Legislative Assembly, from where he has been elected thrice consecutively. माननीय आपसे अनुरोध है कि कृपया करके युवाओं का मार्गदर्शन दें. माननीय अंत में अपना उद्बोधन देंगे. May I now invite on stage Shri A.K. Chauhan ji to deliver his special address. Sir A.K. Chauhan ji is 1984 batch Indian Revenue Services officer who has held various important positions in income tax. He has served as the first Director General of Competition Commission of India. Presently, he is posted as the Principal Chief Commissioner of Income Tax, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. May I now request Sir A.K. Chauhan ji to deliver the special address. Honorable Dr. Narottam Mishra ji, the dynamic Home Minister of our state, Shri Ram Madhav ji, the National General Secretary of the BJP, and the strategist behind many moves which we come across in the press. Such a young audience here, as just Rohit stated, that we have had cross-section of young leaders and thinkers who are physically present in this hall, and many are connected through the virtual platform here. Now, let me first of all take this opportunity in congratulating the organizer and the curator for giving this kind of platform for the benefit of the state of Madhya Pradesh. As I've been told that we have political young leaders, we have leaders from the business, we have professionals. So across the society, we have a lot of people out here, so they're good to be here, cross-fertilization of ideas. And ultimately, this particular Madhya Pradesh Thinkers Forum will eventually develop into an institution. I've been given a topic, importance of institution building.
And therefore, it is a very connected and a contemporary topic given to me, considering that today is the launch of the Madhya Pradesh Thinkers Forum. And I'm indeed happy to address the youngsters because I derive energy from you people. And let me tell you, there is always a cross flow of energy back to you people. I've been here in Madhya Pradesh as Principal Chief Commissioner for about 2.5 years now. And believe me, I have always tried to make a connect between the taxpayers and the tax administration. And therefore, this topic for me is very dear. And more so that I have been the first Director General of the Competition Commission of India. So I have developed this institution, the Office of DG Competition Commission, from the scratch to its vibrant form in a span of about 4 years, from 2010 to 2014. So therefore, I comprehend and I understand the dynamics of institution building in terms of capacity building, in terms of the team building, in terms of the infrastructure, logistics, the job profiling, and ultimately the delivery. And similarly, you know, I represent an institution, it's called Indian Revenue Service or the Income Tax Department, which is celebrating its 160th Foundation Day on the 24th of July this year. So I have that experience of 36 years under my belt to share some of my thoughts on this August gathering. Well, ladies and gentlemen, we all know that strong nations are built on strong institutions. And when I speak of strong nation, and when we talk about institutions here, primarily there are 3 institutions which govern a strong nation. And that's, you have a responsive legislature, we have a committed executive, and lastly, expeditious judiciary. Now, the 3 wings of any strong nation. Similarly, when we talk about economy, any strong economy, the driving factors of a strong economy are the institution which govern and which frame the rule of the law. And so institutions with monetary institutions, we have fiscal institutions, and we have the trade and commerce institutions. So I'm not going to go into the theoreticals, you know, I can speak on theoretics because I have a very limited time given to me, is also about 15 minutes. So let me come on to hit on the head of the nail. As to you youngsters have to really, really think about our state, Madhya Pradesh, because this state has the potential, because my experience is that this state has the potential. All what you need is to convert the ideas into strategies and convert the strategies into action. And I'm sure you are young brains, you have ideas. We as experience holders can only guide you. We can only be your mentor. But ultimately, you have that kind of that creativity. You people can come forward with innovations. Well, when the topic was given to me, building institution and its importance, underlying its importance, I coined for you guys, because I keep doing such things in Madhya Pradesh, 5 C's which you have to underline and when you have to understand the importance of any institution. And Madhya Pradesh Thinkers Forum is an idea today
But eventually this is going to be a platform, or permanent platform, where you will have exchange of ideas culminating into action. So I thought of coming out with 5 capital C's, which you will have to keep in mind when we talk about the Madhya Pradesh Thinkers Forum. And the first is your core competence. Remember one thing, that everybody has some competence or the other. It's only because I'm a management fellow from Sydney University, and you have to know your competence, core areas of competence. You will have to match these competences with the opportunities available. And once you do this, I'm sure success is on your platter. The second C, which I thought of for youngsters to just remember, is the creativity. Youngsters have to really think hard and foster innovation. Ultimately, the game changer is going to be the innovation. You have to convert the adversities into opportunities. I underline, you have to convert the adversities into opportunities, and that can be done only when you are creative and you have innovations and you have ideas which can flourish into action. And the third C, which I very advocate for you youngsters, is the character. You must build a strong character. And when I speak of character, I talk about professional integrity. I talk of motivation, and I talk of spirit to face the challenge. And that is the character the youngsters could have. And the fourth C for your consumption is the commitment. You will have to be devoted, focused on what your targets are in your life. Set your targets which are optimistic, which you think you can achieve, and then be committed for the cause. And last, of course, is the contribution. Youngsters here are the leaders for tomorrow, and they are the precursor to the growth of the nation and growth of our state of Madhya Pradesh. Well, let me tell you one thing with my experience here in Madhya Pradesh. If you carry out a SWOT analysis, I'm sure if someone is from management are here, this is nothing but strength, weakness, opportunities, and threats. Well, there are opportunities here. All you have to see and say threats are in terms of risk-taking. And as I said, Madhya Pradesh has the potential to grow. When I say, I speak with authority because we launched a program in Madhya Pradesh, a very novel program called Aikar Data Vistar Abhiyan. And ladies and gentlemen, I'm proud to announce here from this platform that this strategy-based program gave us a phenomenal result, and we were able to add more than 9 lakh new taxpayers in the state of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Last year, I gave a slogan, which was very popular. Dr. Narottam Mishra is aware of that. I gave a slogan, Kardata ka yogdan, Mera Bharat Bane Mahan. Because I want to empower my taxpayers. Ultimately, that's where the voluntary tax compliance will come through. Gone are the days where I've transformed the image of the department, not as a tax collector or tax administrator, but as quality taxpayer service provider. And that is the tag I want to. And more importantly, for me, if I speak in the capacity as the Principal Chief Commissioner, is
that I have tried to build a strong bridge between the taxpayer and the department, so that the trust deficit that can be reduced or eliminated. And therefore, I'm very proud to say that we did achieve wonders year before last in the financial year 17-18, having registered the highest tax growth rate in the entire India. We had registered, sir, Dr. Ramadhan, we had registered a tax growth rate of 34.70% in the financial year 17-18. And my team was honored by the Honorable Speaker, Sumitra Mahajan Madam. So, well, this is all part of the strategy building and part of institution building. Now, today, from this platform, I would like to invite all these youngsters, the young thinkers, the young entrepreneurs to come forward, have exchange of ideas, and contribute in whatever manner you can for the cause of the state and for the cause of the nation. Now, incidentally, I like the motto of the forum. It said, deliberate, discuss, and discover. And I told Rohit, I said, look, there is something missing. Because I don't want this platform to be a discourse of intellectuals. And if you permit me to say, so-called discourse of pseudo-intellectuals who just discuss out on television or on roundtables. But it should be culminated or should percolate into action. So therefore, I would suggest to the organizer that please add the fourth D to this motto. So you will have deliberations, you will have discussions, you will have discovery, and last is the delivery. Ultimately, what is required is the delivery. All these ideas should percolate into delivery. So, ladies and gentlemen, I can continue because I love interacting with youngsters. But then with the very limited time, we need to hear Dr. Ram Madhavji on our self-reliant nation. And this was, I think, a good start, a precursor to the self-reliant nation, which I'm sure we're going to be enriched by his speech. Thank you so much for giving me an opportunity to share my thoughts with the youngsters. Feel free to be in my office anytime. If you have any ideas or anything which you feel that you could discuss and you can contribute to the department, you're most welcome. We intend to, in fact, we are honoring the centenarian taxpayers this year to about 6 gents and ladies who are above 100 years, where we intend to do it to the young entrepreneurs as well. We'll start this year. Thank you so much and God bless you. Thank you. So thank you so much for your insight on institution building. I'm sure that this was a great thing when he said that how important is team building, job profiling, and ultimately the delivery. So I'm sure with the 3 Ds, we're going to go on the 4th G as well. And yes, thank you for the 5 capital Cs that you gave us, be it the core competence, the creativity, character, commitment, and constitution. But yeah, moving on to, may I now request Shri Ram Madhavji to deliver the keynote address. Ram Madhavji is an Indian politician, author, and thinker who's currently serving as the National General Secretary of the Bharatiya Janata Party. Formerly, he has been a member of the National Executive of Rashtriya Swayamsevak Sangh. Ram Madhavji also serves as a member of the Governing Board of India Foundation, a New Delhi-based premier think tank which seeks to articulate Indian nationalistic perspective on issues of national and international importance. May I now request you, sir, to please enlighten us.
मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता, राज्य सरकार में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर श्री A.K. चौहान जी, all the young friends present physically in this hall, and also all those others who are present in this forum virtually. My namaskars to all of you. Narottam ji said that he will not speak. Silence is sometimes a very potent weapon for politicians. He also handles parliamentary affairs ministry. Those who handle parliamentary affairs should learn to speak less publicly. That he knows. Because बहुत कुछ privately करना पड़ता है parliamentary affairs ministers को. He was just telling me that he has been a parliamentary affairs minister for last 15 years. So his preference for silence is not a surprise, but I still hope that he would share his thoughts with us probably towards the end of this program. इस समय हम कोविड की महामारी के प्रकोप से निकल रहे हैं. I'm sure you are all taking necessary precautions. You are all hale and healthy. Taking precautions is important, not just for the sake of our own health, but also for the sake of the health of those who are around us. So I'm sure you will all follow the necessary precautions, take good care of yourselves, and also in the process, take care of our community and our state. By the way, Madhya Pradesh was initially controlling it very well. There seems to be a little spike in numbers, but I'm sure the government is taking all the necessary precautions and necessary steps to contain it. Compared to other states, I know this state is doing very well. I only hope that whatever the challenges that lay ahead in terms of managing this COVID crisis, COVID pandemic, will be dealt with effectively by Narottam ji, our Honorable Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan ji, and all his team members. Friends, following this COVID challenge is the next challenge that is coming to, that we are going to face. That is going to be the economic challenge. कोविड चैलेंज तो 2-3 महीने में समाप्त हो जाएगा, पर इसके बाद जो इकोनॉमिक चैलेंज आएगा, उस चैलेंज को जिस प्रकार हमने कोविड चैलेंज का सामना किया है, उसी प्रकार हमको उस चैलेंज को भी सामना करना पड़ेगा. You know, there is a distinct way by which we have handled COVID. Unlike many countries in the world, 3 प्रमुख कारण रहे हैं कोविड को हम अच्छी तरह मैनेज करने में. आज भले ही नंबर्स देखकर कोई कह सकता है कि दुनिया में आप नंबर 3 है, नंबर 2 है, नंबर ऑफ केसेस वगैरह में, बट रिमेंबर, India's population is very high. We are a country of 130 crore people, 1.3 billion people, and our population density is also very high. For a country of that size and that population density, to contain the virus to 7-8 cities or 7-8 states is not a small achievement. How did it become possible? I cite 3 important reasons. Number 1, of course, it's a universally accepted thing that you have a good government, a visionary prime minister
who had the courage to take decisions, strong decisions on time. कभी कभी अच्छा डिसीजन भी आप विलंब से लेते हो तो उसका परिणाम नेगेटिव ही होगा. But we had a leader who took decisions on time, but who is also sensible to the sufferings of the people, who had plans ready to address the fallout of this COVID pandemic. कभी कभी आप कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले लेते हो नॉट थिंकिंग अबाउट द फॉलोआउट. I was talking to Honorable Railway Minister. I asked him, sir, where did this brilliant idea come from of converting railway coaches into COVID wards? In all humility, Honorable Railway Minister told me, sir, one day early morning, even before the lockdown was announced, I received a call from Honorable Prime Minister who said, look, we need to find ways of converting our railway compartments into COVID wards. This was when India had only 200 cases. Remember, before COVID, we only had 200 cases. Even then, Honorable Prime Minister was thinking about what could happen, how to prepare the country, how to prepare the system. So we are fortunate that we had a leadership, we have a leadership which has the courage to take tough decisions, but also has the heart that bleeds for the ordinary people of the country. But then, that is one of the, of course, the most major important reason, but it's not the only reason. There's a second reason. The Indian administration, हमारे IAS से लेकर, हमारे प्रशासन से लेकर, पुलिस से लेकर, हेल्थ केयर से लेकर, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, जनरली हमारा इंप्रेशन क्या होता था इनके बारे में कि यार ये तो या तो इनएफिशिएंट है या करप्ट है. दिस यूज्ड टू बी द जनरल परसेप्शन अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. बट व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 2-3 months? आपके परिवार में भी कई लोग ऐसे होंगे, डॉक्टर्स होंगे, नर्सेस होंगे, जो दिनों दिन घर नहीं गए. मैं तो ऐसे पुलिस वालों की कहानियां पढ़ते रहता हूं. कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर 6-7 दिन घर नहीं गया. जब गया भी तो घर के आंगन में बैठकर खाना खाकर बच्चों को, परिवार को दूर से देखकर वापस ड्यूटी में लग गया. ये जो काम हमारा प्रशासन ने किया, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे एंटायर सिस्टम ने जो किया है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कोविड को कंटेन करने में. द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज ऑल ऑफ अस. The 1.3 billion Indians, हमेशा कुछ exceptions होते हैं. If you leave those exceptions aside, 1.3 billion Indians, the discipline that they showed. Again, Indians के बारे में कहते हैं कि भाई Indians कभी कोई अनुशासन में तो रहते नहीं है. लाल बत्ती है, मोटरसाइकिल पे 3 लोग बैठकर बिना हेलमेट के, लाल बत्ती पर पुलिस खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, उनके रहते हुए उसको जंप करके चले जाते हैं, पुलिस के पकड़ में नहीं आकर चले जाते, वो हीरो माने जाते हैं. ऐसे युवाओं का देश माना जाता है. पर लुक एट द डिसिप्लिन, नॉट जस्ट डिसिप्लिन. Look at the way we served the suffering in this country, the needy in the country during this COVID crisis. Let me tell you, अगर देश के 130 करोड़ जनता साथ नहीं देती सरकार को, जैसा आज अमेरिका जैसे देशों में हो रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है वहां, तो टेक इट फ्रॉम मी, इंडिया में भूखमरी हुई होती. पीपल वुड हैव डाइड आउट ऑफ हंगर. पर इंडिया में एक व्यक्ति को भी खाने का मुश्किलात नहीं आई है ये 2 महीना 3 महीने के लॉकडाउन में, जब नौकरियां बंद थी, व्यापार बंद था, दुकान बंद थे, सब कुछ बंद था, बट लोगों को खाना मिलता रहा.
मिनिमम नेसेसिटीज मिलते रहे। एक कारण यह है कि 130 करोड़ जनता ने कहा कि नहीं, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, इट्स नॉट जस्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अलोन। ये जो कैरेक्टर इंडिया का सामने आया है, यही कारण था कि भारत सरकार को कोई ड्रैकोनियन कानून इस कोविड को मैनेज करने के लिए बनाना नहीं पड़ा है। Have you seen any draconian act being promulgated in last 3 months to contain this virus? It's a new challenge. It's such a huge challenge. फिर भी हमको नहीं पड़ा जरूरत। क्यों? क्योंकि यह देश भी साथ दिया, प्रशासन भी साथ दिया। मुझे जहां तक याद है, एक ही एक लॉ बनाना पड़ा हमको, भारत सरकार को। वो था कि कोई जाकर ये मेडिकल कर्मचारियों को, पुलिस वालों को जाके पीटता है, केवल उनको जेल में डालने का कानून बनाना पड़ा। वो भी इंदौर के कारण करना पड़ा। आपको याद हो गया है, घटना हो गई थी, वो बेचारी एक नर्स जा रही थी, तो एक डॉक्टर या नर्स जा रही थी, तो उनको पिटाई कर दिया। उसको रोकने के लिए दोस हु आर फाइटिंग द कोविड वायरस, इफ देयर वर्क इज हैम्पर्ड, देन ओनली देयर इज अ लॉ टू पनिश पीपल। अदरवाइज हमने कोई कानून नहीं बनाना पड़ा। देशों में तो आर्मी को उतारना पड़ा सड़कों पर, कई देशों में। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इसलिए थोड़ा समय लेकर इस बात की जिक्र कर रहा हूं, जब आने वाला इकोनॉमिक चैलेंज को सामना करना हो, तो वी आल्सो नीड दीज 3 थिंग्स। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज प्लान्स फॉर इट। आत्मनिर्भर भारत का जो आह्वान प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, एक सोच समझकर दिया हुआ काल है ये। आत्मनिर्भर, मैं उसके पीछे का विचार को समझाता हूं, पर उससे पहले मैं ये कहूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम केवल सरकार का मात्र नहीं है। इसमें प्रशासन का भी सहयोग की जरूरत होती है। सबसे बढ़कर देयर हैज टू बी ए मेजर माइंडसेट चेंज इन द सोसाइटी, ऑल ऑफ अस यंगस्टर्स। जैसा अभी चौहान साहब 5 C's की बात कह रहे हैं। 5 C's यानी चेंज इन योर थिंकिंग, एटीट्यूड बदलना है। हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखना, बदलना है। उसका अर्थ यह नहीं कि सरकार की कोई काम नहीं है, सरकार का अपना रोल है। बट आत्मनिर्भर जहां देश को लागू होता है, वह आपको मुझे लागू होता है। मैं क्या मेरे पैरों पर खड़ा हो सकता हूं? जहां मैं जॉब सीकर रहा अभी तक, क्या मैं जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बन सकता हूं? नया सोचना पड़ेगा। इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि हम पिछले 60-70 साल में एक विशेष चिंतन के लिए आदती हो गए। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ हाउ मेनी थाउजेंड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री? 5,000 years of history. And in the course of your 5,000-year history, you have produced such universally most precious value systems, ideas. आप महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, कितने आइडियाज हैं। उतने आइडियाज को जनरेट करने वाला देश, उतना विचारवान देश। अमर्त्य सेन साहब ने तो बुक लिख दिया, आर्गुमेंटेटिव इंडियन। हर इंडियन आर्ग्यू करने के लिए सक्षम रहता है। हमारे बारे में मजाक से कहते हैं, एक इंडियन अकेले मेरे जैसा माइक मिल गया, वो पूरे दुनिया को सुधारने के लिए लंबा भाषण दे देगा। 1 घंटा भाषण दे सकता है। एवरी इंडियन इज कैपेबल। अगर मुझे हटा के आपको बुलाएंगे तो आप मेरे से अच्छा भाषण देंगे। जैसे ही दूसरा आता है, when 2 Indians come together, आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। No Indian agrees with the other. मजाक से कहते हैं, तीसरा जैसे आता है, कंफ्यूजन शुरू होता है। हम हैं, बहुत बुद्धिमान है। पर क्या हुआ, 47 के बाद हमने खुद सोचना बंद किया। स्वतंत्र तो हो गए, स्वतंत्र हुए मतलब हम अंग्रेजों से मुक्त हो गए, बट सोच को उन्हीं के पास रख दिया। तो when the question of economic development of independent India came, the first idea that we adopted when Prime Minister
when Honorable Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, you know what it was? Those days, socialism was a very popular word. आज तो गाली माना जाता है, but उन दिनों में socialism. तो नेहरू ने पहले घोषणा की है, India will be treading the path of a socialist pattern of society. अब ये सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या है, इस देश में किसी को समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि सोशलिज्म नाम की चीज तो इंडिया का आइडिया तो था ही नहीं वो। मजेदार बात यह है कि उसको कभी डिफाइन भी नहीं किया गया। या चलो अशोक जी तो आईपीएस है, कोई आईएएस होगा तो आईएएस ऑफिसर सबको मुस्सोरी में एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होता है बिफोर दे आर एक्चुअली सेंट टू द फील्ड। नेहरू 1953 में मुस्सोरी इंस्टीट्यूट में भाषण देने गए बडिंग आईएएस ऑफिसर्स के लिए। वहां उनसे एक ऑफिसर ने, उन्होंने 1 घंटा अच्छा भाषण दिया, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वगैरह वगैरह। तो किसी एक यंग ऑफिसर ने पूछ लिया, सर योर स्पीच वाज वेरी गुड बट वी स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। या तो इट इज सोशलिस्ट सोसाइटी या इट इज सोशलिज्म। What is socialist pattern of society? तो नेहरू ने कहा, you are asking a very fundamental question. The country should understand it. It's a very profound question you are asking. But क्या करूं, आज मुझे थोड़ा सिर दर्द है, आज नहीं होगा, बाद में बात करेंगे। I am not concocting a story. अमिया राव, बीजी राव जो उनके पर्सनल सेक्रेटरीज रहे हैं 16 साल तक, उन्होंने किताब लिखी 6000 डेज। 16 साल लगभग 6000 डेज होता है। उनका अनुभव लिखिए, उन्होंने लिखा इसमें कि जीवन में कभी हमने डिफाइन नहीं किया सोशलिज्म क्या होता है, इंडिया के लिए क्या होता है। वहां यूरोप में अच्छा पॉपुलर था तो हमने ले लिया। ऐसे बारोड आइडियाज पर चलते रहे तो थिंकिंग भी उसी प्रकार हमारा बन गया। आज आत्मनिर्भर भारत का जब बात हम करते हैं तो वो थिंकिंग बदलना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। आज आपको सारे नंबर ही दे रहे, चौहान साहब ने 5 दिया, मैं 2 दे रहा हूं। आत्मनिर्भरता के लिए पहला रिक्वायरमेंट होता है आत्मसम्मान की भावना। डू यू हैव सेल्फ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। पहले ये मेरा देश है, मेरा सोच होना चाहिए, मेरा नाम के चीज पर मुझे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम कोई 4 प्रकार के देशों से आए हुए लोगों का बसा हुआ कोई कॉलोनी नहीं है, 5000 साल वाला पुराना देश है। मेरा अपना चिंतन हो सकता है, तो मेरापन पर आपको पहले विश्वास है क्या? तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सेल्फ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। एक बार ये आया ना, सेल्फ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आप का पूरा सोचने का दायरा बदलता है। मेरे देश के समस्याओं का सॉल्यूशन मैं ढूंढूंगा, मैं इधर उधर से बारो नहीं करूंगा। आत्मनिर्भर बनने का पहला क्वालिटी यह है आत्मसम्मान की भावना होना है। हमारे यहां क्या है, एक जापानी व्यक्ति होता है, उनके जेब में मेड इन जापान पेन होता है तो वो गर्व महसूस करता है। एक ब्रिटिशर होता है, उनके जेब में मेड इन इंग्लैंड पेन होता है, वो गर्व महसूस करता है। हम एक इंडियन होते हैं, अपने जेब में एक मेड इन जापान या मेड इन इंग्लैंड होता है तो गर्व महसूस करते हैं। पेन भी मेड इन जापान चाहिए। क्यों? हमारे यहां भावना में ही एक समस्या है, पहले इसको बदलना पड़ेगा। जो स्वदेशी नाम का चीज है ना, वो इस बात को कहता है, स्वदेशी इज नॉट जस्ट अबाउट रिजेक्टिंग something from outside or accepting something which is our own. It's a much broader idea of self dignity.
अपने चीज को लेकर आप में आत्मविश्वास है क्या? आपको सम्मान होता है क्या? ये पहला है। पर यही सब कुछ नहीं है। हमारे यहां कहा गया, पुराण मित्यव न साधु सर्वम न चापि सर्वम नवमित्यवद्यम संत परीक्षान यत्र भजन्ते। हमारे परदादा ने कुआं खोदा तो उसमें गंदा भी पानी है तो मेरा है करके स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। दूसरा, आत्मविश्वास चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस उस बात का परिचय है कि भाई नहीं, मेरे आत्मसम्मान के आधार पर मैं एक नए भारत को निर्माण करूंगा। आधार होगा मेरे प्रति आत्मसम्मान, बट मेरे पास इतना आत्मविश्वास है, मैं नए भारत को खड़ा कर दूंगा। जब आत्मसम्मान भी है, आत्मविश्वास भी है, सेल्फ डिग्निटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दैट इज व्हाट इज सेल्फ रिलायंस। तब आप आत्मनिर्भर भारत को निर्माण कर सकते हैं। आज हम उस प्रयास में लगे हैं, प्रधानमंत्री उस प्रयास में लगे हैं। आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ यह देश आगे बढ़ना है। मैं आत्मविश्वास इसलिए कह रहा हूं कि आज हम दुनिया में बड़े अर्थव्यवस्थाओं में एक है। हम आज दुनिया के 5वें बड़े अर्थव्यवस्था है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है, एक कम अचीवमेंट नहीं है। बट याद रखना, जो साइज ऑफ द इकोनॉमी होता है ना, इट इज डायरेक्टली also proportional in part, not fully, in part to population. आपके पास 130 करोड़ जनता है, इसमें 60 करोड़ मिडिल क्लास है, कंज्यूमिंग क्लास है। उस क्लास के रहते हुए आपका इकोनॉमी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट इज योर इकोनॉमी सस्टेनेबल? आज मैं आपको एक ही छोटा उदाहरण देता हूं। यहां कई लोग जीन पैंट पहन के बैठे होंगे। दिस जीन पैंट का मटेरियल वी प्रोड्यूस इन इंडिया ओनली। हमारे अरविंद मिल्स वाले, ये वाले, वो वाले सब प्रोड्यूस करते हैं। टेक्सटाइल हम बनाते हैं। डू यू नो वी डोंट प्रोड्यूस द जिपर्स। जिपर्स हम इंपोर्ट करते हैं। सेलुलोज टेप इंपोर्ट करते हैं। वायर का केसिंग इंपोर्ट करते हैं। बटन्स इंपोर्ट करते हैं। क्या ये इंडिया में बना नहीं सकते? बना नहीं सकते ऐसा नहीं है, बट हमने एक मॉडल ऐसा अपनाया जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो फिर हम हल्ला करते रहते हैं चीन के साथ, क्या है वो, ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए। भाषण तो आप सब बहुत सुने होंगे, बहुत बार अखबारों में आता है, वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द ट्रेड डेफिसिट। कैसे कम होगा? आप बटन्स भी इंपोर्ट कर रहे हो चीन से, जिपर भी इंपोर्ट कर रहे हो। तो इसलिए जब आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं तो पहले विश्वास के साथ तो सोचो कि भाई जो मैं कर सकता हूं मेरा है। मैं आपको क्योंकि आसानी से समझने के लिए बस 3 देशों को उदाहरण संक्षेप में देता हूं, जो आज दुनिया में बड़े देश है, बड़े आर्थिक शक्ति है। एक जापान है, दूसरा चीन है और तीसरा इजराइल है। जापान, ये 3 देशों को उदाहरण इसलिए मैं ले रहा हूं, इसका एक कारण है। ये तीनों देश लगभग हमारे साथ ही स्वतंत्र जीवन शुरू किए हैं। जापान was devastated in 1945। आप में से सबको पता होगा, जब उनके ऊपर अणु बम गिराया गया, खत्म हो गया जापान। तो एक फीनिक्स पक्षी जैसा पुनर्जीवन प्रारंभ किया 1945 के बाद। हम 1947 में आजाद हो गए। 1948 में इजराइल को आजादी मिली और 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट रास्ते पर माओ के नेतृत्व में एक नया जीवन शुरू किया। हम चारों देश लगभग एक ही समय अपने प्रस्थान शुरू किए। अब ये 3 देश, इसमें 2 तो हमारे से आगे है, जापान और चीन। आर्थिक दृष्टि से दे आर अहेड ऑफ इंडिया। इफ वी आर 5th, China is 2nd and Japan is 3rd. They're ahead of us. इजराइल इतना आगे नहीं है, टॉप 20 इकोनॉमीज में आता है। इसका कारण इतना ही है कि इजराइल कोई कमजोर देश नहीं है।
इजराइल की पॉपुलेशन ही 80 लाख है। द साइज ऑफ द कंट्री इज ओनली 80 लाख। यानी मेरे ख्याल से भोपाल इंदौर शहर मिलाकर कितना पॉपुलेशन है, उतना पॉपुलेशन पूरा देश का है वहां। पर जापान 1945 के बाद जब शुरू किया था तो उन्होंने तय किया कि इफ जापान वर टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट, क्या करना चाहिए? जापान को अपनी टेक्नोलॉजी, अपना इंडस्ट्री खड़ा करना है। पर करे कैसा? ना टेक्नोलॉजी थी ना इंडस्ट्री थी। तो उस समय उन्होंने अपने यंगस्टर्स को अमेरिका भेजा, क्योंकि अमेरिका में सारा सब कुछ था। तो 60s एंड 70s में जापान के बहुत बच्चे अमेरिका जाते थे। एक ही कंडीशन होता था। अब नरोत्तम जी ने डॉक्टरेट किया, वहां जो बच्चे डॉक्टरेट करता है वो डॉक्टरेट का जो थीसिस है, एक कॉपी वो अंग्रेजी में सबमिट करेगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, येल यूनिवर्सिटी में, पर उसका एक कॉपी जापानीज भाषा में टोक्यो में सबमिट करेगा। इन 20 years, whatever new technological innovations that America had were all transferred in Japanese language to Japan. उन दिनों में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों टॉप में थे। ये दोनों इंडस्ट्रीज में ये जो borrowed knowledge थी, it was a borrowed knowledge, उसको लेकर जापान 70s में अपना खुद का इंडस्ट्री खड़ा करना शुरू कर दिया। लेट मी टेल यू, इन 90s में रोनाल्ड रीगन जापान गए, आई थिंक 90 or 91, जस्ट बुश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो यू नो द एग्रीमेंट दैट ही एंटर्ड इनटू विथ जापान, कि जापान से ये जो टोयोटा वाले कार है ना, जापान में टोयोटा कार बनना शुरू हो गया था, 70s में शुरू हो गया था। ये टोयोटा कार जो है ना, इनका जो नंबर ऑफ कार्स टू बी एक्सपोर्टेड टू अमेरिका शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। कभी आपने ऐसे एग्रीमेंट सुना है कि नहीं इससे ज्यादा माल नहीं आना है? ऐसे एग्रीमेंट करते हैं क्या? ज्यादा माल के लिए एग्रीमेंट करते? अमेरिका की ऐसी स्थिति हो गई कि जो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका से लर्न करके जापानीज ने जापान में इंडस्ट्री शुरू किया, 20 साल के अंदर जापान उस टेक्नोलॉजी का सुपीरियर क्वालिटी कार्स को अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा था। फोर्ड पीछे हो गया, टोयोटा आगे हो गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को आके एग्रीमेंट करना पड़ा, वहां से अब भेजना बंद करो थोड़ा टोयोटा कार्स हमारे देश में, हमारा कार नहीं बिक रहा है। कहते हैं कि उन दिनों में जापान कार्स प्रोड्यूस करता था, टेक्नोलॉजी डेवलप करता था, एयर कंडीशंस टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, तो सारे मैनुअल जापानीज में छापते थे। तो अमेरिकन ने पूछा यार जापानीज में क्यों छापते हो, अंग्रेजी में छापो ना। तो जापानीज का उत्तर था कि जब मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, व्हेन आई डिड नॉट हैव टेक्नोलॉजी, आई केम टू योर कंट्री, आई लर्नड इंग्लिश एंड आई टुक टेक्नोलॉजी फ्रॉम यू, टुडे आई हैव द टेक्नोलॉजी, इफ यू वांट इट कम टू जापान, लर्न जापानीज, टेक इट। ये होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। तो एक तो वो विजन चाहिए कि हम अपने खड़ा करना। दूसरा चीन भी 49 में अपनी यात्रा शुरू की थी। चीन के सोशलिज्म को हमने तो एप करने का प्रयास किया, उसके बहुत दुष्परिणाम हुए, उस पर मैं जाऊंगा नहीं। पर चीन ने क्या किया, पहले जब तक माओ जीवित थे उसी प्रकार सोचता था कि हमको बाहर से कुछ नहीं लेना, फॉर एवरीथिंग चाइनीज सोल्यूशन। यहां तक कि कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम तो चाइनीज बच्चों को बाहर जाने से भी माओ ने मना कर दिया, बाहर जाना ही नहीं। पर बाद में 78 में डेंग सियाओपिंग आया। डेंग सियाओपिंग आने के बाद डेंग ने सोचा कि नहीं, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। चीन को नया सोचना चाहिए। और लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इन 1980 चीन और भारत दोनों का जीडीपी समान थी, दोनों वी वर इक्वल इन आवर जीडीपी इन 1980। 40 इयर्स बाद आज हमसे 9-10 गुना बड़ा है उनका जीडीपी, 9 to 10 times बिगर। हमारा तो समान था दोनों का। पर डेंग ने क्या किया, डेंग ने कहा कि नहीं, अब हमको दृष्टि बदलनी है। क्या करना है, उन्होंने एक मॉडल अपनाया। वो मॉडल में 3 सूत्र उन्होंने कहा। नंबर 1, जीडीपीइज्म। जीडीपीइज्म शब्द आप सुने नहीं होंगे ना। जीडीपीइज्म मीन्स
इकोनॉमी फर्स्ट। तो मध्य प्रदेश में मैं जो भी करूं, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। इकोनॉमी के लिए काम करूं, बस सिंगल माइंडेड, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। तो जीडीपी को कैसे बनाना है? तो नंबर 2 प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि जीडीपी बेस्ड इकोनॉमी की खड़ा करने का सोचना है तो ओपननेस चाहिए। तब तक माओ कहते थे कोई ओपननेस की जरूरत नहीं, सब बंद रखो। डेंग ने कहा नहीं, सब कुछ खोलो। तो उन दिनों में अमेरिका के, यूरोप के देश को निवेश करने के लिए वहां बुलाए थे, इन्वेस्ट करने के लिए चीन में। चीन तो कम्युनिस्ट देश था, तब तक सोशलिज्म में भरा हुआ था। तो कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने डेंग से कहा कि यार व्हाट आर यू डूइंग? वी आर कम्युनिस्ट एंड वी आर एक्सेप्टिंग कैपिटल फ्रॉम अ कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक अमेरिका। हाउ कैन इट बी एक्सेप्टेड एज ए कम्युनिस्ट कंट्री बाय चाइना? तो डेंग का एक फेमस स्टेटमेंट है। डेंग ने कहा, as long as the cat is catching the mice, I don't care about its color. मतलब क्या है? जब तक बिल्ली चूहे को पकड़ रहा है, उसका रंग क्या है, उससे क्या मतलब है मेरा? तो एयरपोर्ट्स बने, इंडस्ट्रीज बने, इन्वेस्टमेंट आता था बाहर से। एक संदर्भ में डेंग ने कहा, ने डेंग का प्रैग्मेटिज्म देखिए। डेंग ने कहा कि यार ये लोग आके एयरपोर्ट्स बना रहे हैं ना, ये लोग आके रोड बना रहे हैं ना, ये लोग आके कारखाने बना रहे हैं ना, जब चाहे तब मैं उनको भगा दूंगा। दे विल रन अवे बट दे कैन नॉट टेक अवे दीज एयरपोर्ट्स विद देम, दे आर माइन। ये होता है ओपननेस के सोचने का। आज जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात कह रहे हैं, तो ये भी कह रहे कि इसका अर्थ हम बंद करके नहीं बैठेंगे। तो आज मध्य प्रदेश को सोचना पड़ेगा, भाई कैसे मैं निवेश लाऊंगा, मेरे राज्य को खड़ा करने के लिए निवेश कैसे आएगा, कहां से इन्वेस्टमेंट आएगा, और राज्य से आ सकता है और देश से आ सकता है, सोचना चाहिए। और तीसरा उनका प्रिंसिपल था मैं जब बोलूं तो आपको कुछ याद आएगा, जस्ट डू इट। किसको याद है कहां से आता है ये? नाइकी का होता है ना ऐड। नाइकी का ऐड एक्चुअली डेंग से कॉपी है। डेंग कहते थे कि जस्ट डू इट। अभी जब नरोत्तम जी कह रहे कि मैं बोलूंगा नहीं, तो मुझे वो याद आ रहा था, डेंग का फेमस स्टेटमेंट है, आई डोंट आर्ग्यू, आई जस्ट डू। मैं कोई चर्चा नहीं करता भाई, मेरे से उसका मतलब नहीं। आप चर्चा करो, आप यंग थिंकर्स करो, ये करो वो करो, मेरा काम है करना। जस्ट डू इट। एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी चाहिए, फेल होने की हिम्मत चाहिए। अब बहस करते रहोगे कि सर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो चौहान साहब पीछे पड़ जाएंगे। अब चौहान साहब जब कह रहे थे 35% बढ़ गया टैक्स रेवेन्यू, मैं सोचता रहा देश में 2 लोग सक्सेस नहीं होना है, डॉक्टर्स और टैक्स कंसल्टेंट्स, टैक्स कलेक्टर्स। ये जब ये सक्सेसफुल होते हैं ना, तो लोगों को तकलीफ हो रहा है अर्थ है। कोई डॉक्टर बहुत अच्छा, मेरा दवाखाना बहुत अच्छा चल रहा है बोला, उसका अर्थ क्या है? बीमार लोग ज्यादा है। टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गया मतलब चौहान साहब थोड़ा ज्यादा पीछे पड़ रहे हैं। पढ़ना चाहिए, जेन्युइन टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। बट इंडिया में टैक्स इवेजन रेट्स बहुत हाई रहते थे। आज हमारी सरकार आने के बाद इसमें काफी सुधार हुआ। बट अगर इन्वेस्टर यही सोचता रहेगा कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो कभी, इसलिए डेंग कहते थे कि जस्ट डू इट। हिम्मत करो, करो काम, पैरों पर खड़ा हो। तीसरा अंतिम उदाहरण मैं देता हूं, इसलिए महत्वपूर्ण है ये भी, कि इजराइल का, भले ही उसका पॉलिटिक्स अलग है, वो क्या करता था, फालस्तीन के साथ क्या कर रहा है, कैसे वहां फालस्तीनियंस का दमन होता है, ये अलग कहानी है। एक पक्का जूइश नेशनलिस्ट देश है, स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म पे आधार पर चलने वाला देश है। उसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हो सकते हैं, पर उनकी इकोनॉमी में एक मॉडल है। उनकी इकोनॉमी उन्होंने पूरा डेवलप किया इनोवेशंस पर। उन्होंने एक ही बात कही कि भाई इजरायली कॉपी नहीं करेगा, इजरायली इकोनॉमी विल बी एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन इनोवेशंस। 1 लाख से ज्यादा बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी इनोवेशन उस देश से निकले।
मुझे याद है कुछ साल पहले मध्य प्रदेश पुलिस मॉडर्नाइजेशन के प्रक्रिया में, शायद अशोक अवस्थी जी को याद होगा, इक्विपमेंट के लिए ढूंढ रही थी, तो ओनली कंट्री दे टर्न टू वाज इजराइल, सर्वेलेंस इक्विपमेंट वगैरह के लिए। एक लैपटॉप होता है, 40 किलोमीटर परिधि में जो फोन चाहे वो फोन को टैप कर सकते हैं। करना है ऐसा मैं नरोत्तम जी को नहीं कह रहा हूं, वो गृह मंत्री भी है, बट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, तो इनोवेशन पर जो आधारित एक अर्थव्यवस्था को इजराइल ने खड़ा किया। और इनोवेशन यानी हमारे यहां भी इनोवेशन में हमारे एक मित्र की एक प्रेजेंटेशन कर रहा था मेरे सामने, क्या इनोवेशन है, तेंदू लीव्स का उन्होंने ऐसा स्टिच करके उनको प्लेट बनाया, वो प्लेट बनाने के लिए वो इंडिजिनस मशीन बनाया, वो भी इनोवेशन है, कोई मना नहीं करता है। बट डोंट थिंक स्मॉल, छोटा मोटा करके हमने इनोवेट कर दिया, ये मत बोलो। इनोवेशन इज समथिंग बिग। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाला है, आज दुनिया रोबोटिक्स पर चलने वाला है। आपको पता है चीन ने एक नया रोबो बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके। आप घर में कुर्सी में बैठ के उसको इंस्ट्रक्शन दो कि देखो मेरे लाइब्रेरी में सेकंड अलमेरा में थर्ड फ्लोर में देयर इज अ बुक विथ सो एंड सो टाइटल, इट विल गो फेच दैट बुक एंड इट विल ब्रिंग इट टू यू। यानी सैटेलाइट यूज करके इनोवेशन का रास्ते में इतना आगे बढ़ गया कि खुद जाके आपका किताब ढूंढ के लाके आपको दे देगा। मैं एक बात कहते हुए मुझे दुख होता है, आज भी इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा लैब है नहीं। यहां हमारा चैलेंज है, इनोवेशन इज अवर चैलेंज, जस्ट डूइंग इज अवर चैलेंज। इसलिए मैं आप मध्य प्रदेश के युवाओं से यही आह्वान करना चाहूंगा कि आपको सोच बदलना है, देश बदलना है तो सोच बदलना है। दुनिया के अनुभव से जो सीखना है वो सीखना। हमने कभी नहीं कहा कि वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। हम कोई माओ के देश में नहीं है। हमने कहा कि आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वथा, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द वर्ल्ड। बट क्या आपको अपने स्वाभिमान पर, अपने आत्मविश्वास के साथ सोचने का हिम्मत है? अगर है तो आत्मनिर्भर भारत हम बना पाएंगे, सेल्फ रिलायंट इंडिया हम बना पाएंगे। वैसे सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे घोषणाएं की है। आज आप में से कोई भी यंगस्टर को कोई आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल लेना है तो आर्थिक राशि तैयार है, सरकार की नीतियां उपलब्ध है। आज तो कई लोगों के लिए तो काउंटर गारंटी की भी जरूरत नहीं है। ये हमारे सरकार आने के बाद पहली बार इस देश में हुआ है कि इस देश का युवा अप टू 15 करोड़ कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक से या कहीं से लेना चाहता हो, ही डजंट नीड टू सबमिट एनी काउंटर गारंटी। घर गिरवी रखना है या पत्नी की ज्वेलरी गिरवी रखना है या माताजी के संपत्ति गिरवी रखना है, इसकी जरूरत नहीं है। यू आर आवर गारंटी। बट डू यू हैव दैट इन यू, that self confidence, that self dignity, but that just to do it attitude, just do it attitude, वो हमको करना है। और इसका दायरा बहुत बड़ा है मित्रों। आज आत्मनिर्भर भारत के लिए हम एग्रीकल्चर से लेकर हाई एंड टेक्नोलॉजी तक सभी क्षेत्रों में हम एंकरेज करना चाहते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सबको सोचना होगा। एक अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। सरकार तो तैयार है आत्मनिर्भरता की दिशा में। whatever our country's youngsters want to do, government will be behind you. बट एक चीज की जरूरत होती है, वो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है कहकर मैं समाप्त करता हूं। आप सबने न्यूटन का सुना होगा। न्यूटन ग्रेविटेशनल थ्योरी का
प्रतिपादक था। जो आज साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो क्लास में टीचर क्या कहती है, यार चीज ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि भूमि में एक आकर्षण होता है। अगर कोई बच्चा टीचर से पूछ लेता, मैम ये नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, तो टीचर क्या बोलेगी, बुद्धू हो क्या, न्यूटन पढ़ा नहीं? मानो न्यूटन के कारण नीचे गिर रहा है। वो न्यूटन के कारण नहीं गिर रहा था, न्यूटन ने उसका खोज किया। कैसे किया? तो कहते हैं कि वो एक आर्चर्ड में गया, एप्पल के आर्चर्ड में, एक एप्पल के पेड़ के पास बैठा हुआ था, तो आवाज आई, तो देखा तो नीचे एक राइप एप्पल नीचे गिर के दिखा उनको। हम भी तो गार्डन में जाते हैं, आम के गार्डन में, हम बैठते ही देखना शुरू करते हैं कुछ गिरा है क्या, नहीं तो एक पत्थर उठा के गिराने का कोशिश करते हैं। गिरते ही हमारा सोच क्या होता है, माली तो नहीं देख रहा है, उठा के लेके जाऊं। But what occurred to Newton was that this apple, why did it come down? Why didn't it go up? ऐसा सोचा तो न्यूटन हुआ। This is what is called out of the box thinking. गांधी जी कहते हैं, गांधी जी भारत आए तो उन दिनों में बैरिस्टर उपाधि लेने वाले, लंदन से बैरिस्टर उपाधि लेने वाले भारत में 10 के नंबर्स में थे, जिन्ना भी एक था उनमें। पर गांधी जी अगर मुंबई में बैरिस्टर बनते तो बहुत अच्छा अपना जीवन चला सकते थे, फिर भी जैसा जिन्ना ने आंदोलन चलाया ऐसा गांधी जी भी चला सकते थे। बट गांधी जी डिसाइडेड दैट आई विल वेयर ए लॉयन क्लॉथ, सिंगल क्लॉथ, एंड गो एंड लिव अमंग द अनटचेबल्स ऑफ दिस कंट्री। वार्ता चले गए तो उनको जाति बहिष्कृत किया गया, मालूम है आपको? गांधी को जाति से बहिष्कार किया गया, क्योंकि तुम जाति का बंधन तोड़ के उनके बीच जा रहे हो। गांधी जी ने कहा आई डोंट केयर। ये होता है आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच। तो उस प्रकार आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर आज आत्मनिर्भरता की दिशा में हम सबको भी काम करना होगा। Country as a country wants to become Atmanirbhar, but country's Atmanirbharta depends not just on the government alone. It depends on the administration, depends on the people, especially the youngsters of this country. मैं चाहता हूं कि इस यंग थिंकर्स मीट के इस संदर्भ में जो लोग हुए, इकट्ठा हुए, आप इस दिशा में सोचे। और आज मैं इस यंग थिंकर्स मीट के उद्घाटन के लिए इस ऑर्गेनाइजर्स टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आई कंग्रेचुलेट देम, कॉम्प्लीमेंट देम फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन मध्य प्रदेश, एंड आई विश देम ऑल द सक्सेस इन देयर एंडीवर्स। नमस्ते। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने हम सबको इनफॉर्मली बहुत बधाई दे दी, तो आपका बहुत धन्यवाद उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच राम माधव जी, आपके इनसाइट के लिए, फॉर योर विजन ऑन आत्मनिर्भर भारत। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दो मूल मंत्र हैं आत्मनिर्भर भारत के, and how the 1.3 billion people of our nation are disciplined in their own ways and in every way. And most importantly, जब हम आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो GDPism, जिसमें economy first should be our priority, but that comes with the openness. So I'm sure that Madhya Pradesh would, with all the open arms, get everybody to help us become the Atmanirbhar. Not only our villages, but yes, our state as a whole. Thank you. Now we shall proceed towards the Q&A interaction. मैंने पहले भी इसके instructions दिए थे कि हम 2 प्रश्न जो हैं वो वर्चुअल ऑडियंस से पूछेंगे और 2 जो हमारे प्रश्न हैं वो हम फिजिकल ऑडियंस से पूछेंगे। चैट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो सिलेक्शन कमेटी ने कुछ लोगों के नाम यहाँ दिए हैं। तो पहला प्रश्न जो है, मैं चाहूंगी शांतनु त्रिपाठी जी जो फिकी से हैं, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और संक्षिप्त में प्रश्न पूछिए। धन्यवाद।
सभी को मेरा सादर नमस्कार और आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय राम माधव जी, आदरणीय इनकम टैक्स कमिश्नर सर, सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर मेरा एक छोटा सा एक प्रश्न राम माधव सर के लिए। जैसा कि सर ने बोला कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है वो सोच से शुरू होता है, थिंकिंग प्रोसेस से। तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो थिंकिंग प्रोसेस हमारी बचपन से लेकर और जब तक हम लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करते हैं तो वो पूरा डिजाइन करते हैं। तो हमारे एजुकेशन का इस आत्मनिर्भर भारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट वो किस तरीके से किया जाए, मैं उसके बारे में थोड़ा सर के व्यूज जानना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एडवोकेट अर्जुन सिंह जी फ्रॉम जबलपुर, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए। Honorable members of the dais, Ram Madhav ji, Honorable Narottam Mishra ji, and A.K. Chauhan sahab. Sir, my question is majorly towards Ram Madhav ji. It's not a pointed question, but a comment-seeking question, sir, towards Madhya Pradesh Atmanirbharta. Sir, what I've observed, the biggest advantage that we have in Madhya Pradesh is primarily with regard to the geographical advantage. I believe what Bombay is today, what Calcutta, Visakhapatnam has always had the major geographical advantage. And even if we look towards US, the biggest logistic airports in the world are based on the smallest of the cities and smallest of the states. Sir, on those lines, can't we look towards Madhya Pradesh as becoming the logistic capital of India? I just want to know the national perspective on these lines and orientation of the center on these lines, sir. That's my question. Thank you. धन्यवाद। एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है। एंटायर एजुकेशन सिस्टम हैज टू गेयर अप टू ट्रेन पीपल इन टर्म्स ऑफ आत्मनिर्भरता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जरूर है। जब से मोदी जी की सरकार बनी उस दिशा में ऑलरेडी काफी एफर्ट शुरू हो गए। स्किल इंडिया का जो जितना इनिशिएटिव है वो इसी दिशा में एक इनिशिएटिव था। और अब जो नया करिकुलम भारत सरकार की ओर से आने वाला है उसमें भी इसको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देने का प्रयास चल रहा है। पर एजुकेशन अगेन इज ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट। स्टेट्स को भी उसी दिशा में सोचना होगा। आई एम श्योर कि मध्य प्रदेश सरकार भी उस दिशा में अच्छी तरह सोचकर जो आवश्यक कदम है वो उठाएगी। एमपी एज लॉजिस्टिक्स कैपिटल ऑफ इंडिया, मैं तो मध्य प्रदेश का हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छा राज्य मैं हमेशा मानता रहा हूं, क्योंकि सम ऑफ द प्लेसेस इन मध्य प्रदेश आई लाइक वेरी मच। पचमढ़ी हो, बाकी चीजें हो, उसके कारण मैं हमेशा यहाँ का वेदर एंड आई कैन टेल यू भोपाल is the greenest capital in the entire country. भोपाल जैसे ग्रीन कैपिटल देश में कहीं नहीं है। और आपका तो सिटी ऑफ लेक्स बोलते ही है, बट द ग्रीनरी, द ग्रीन कवर दैट एनी कैपिटल सिटी इन इंडिया हैज, कंपेयर इट टू भोपाल रैंक्स वेरी हाई। तो भोपाल जरूर, मध्य प्रदेश जरूर लॉजिस्टिक्स कैपिटल, लॉजिस्टिक्स हब बनने की क्षमता रखता है। पर आपको एक कॉम्पिटिटर है, वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो नागपुर क्षेत्र है वो भी उसी प्रकार एकदम ऐसा हब है भारत का। तो आपकी सरकार कोशिश करे मध्य प्रदेश को अच्छा आगे बढ़ाए तो जरूर मध्य प्रदेश भी लॉजिस्टिक्स कैपिटल बन सकता है। वैसे तो जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है वो कॉरिडोर एक लंबा डिस्टेंस मध्य प्रदेश के अंदर से जाता है। इट एंटर्स somewhere in ग्वालियर एरिया and exits after इंदौर। तो एक लंबा एक कॉरिडोर आपको मिल ही रहा है। उस कॉरिडोर में भी काफी बड़ा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। वहाँ लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से वेयर हाउसिंग हो सकता है और एक्सेसरी एक्टिविटीज बहुत कुछ जो है डेवलप हो सकता है।
It's a very good idea, but I'm sure the Madhya Pradesh government will certainly pay attention to that very good suggestion. Now we shall move on to the physical audience. आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहता है, you can please raise your hands. प्रखर जी, प्रखर जी एक आप पूछ लीजिएगा और एक आप पूछ लीजिएगा सोनू जी, ठीक है? प्रखर जी पहले आप आ जाएं प्लीज towards the mic. Yeah, you'll have to go there. Second three questions. I'll ask her. You'll be the third one. Sir, good evening. Sir, आपने guide किया about what and why. My question is on how. Then you came to education. So education में आपने skill development की बात करी. So my question is specifically is कि education, skill development और industry को कैसे link करना चाहिए? Thank you. हाँ, सो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सेंसिटिव है और मैं उम्मीद करूंगा उसको अन्यथा नहीं लेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी हमारी प्रेजेंट की सरकार है, काफी प्रोग्रेसिव है और विजनरी हमारे लीडर है और काफी समाज के अभिवंचित वर्गों के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। मैं थोड़े आंकड़ों पे जाना चाहूंगा। सर, आपको विदित होगा कि हमारे जो प्रेजेंट लॉज हैं उसमें डिसेबिलिटी को बढ़ाकर 21 कैटेगराइज किया है अभी, और पुराना आंकड़ा कहता है 7 थी, जिसके हिसाब से 2.19% डेटा होता था। और अभी जो यूएन कहता है, यूएन के हिसाब से जो पॉपुलेशन होती है उसका 10% डिसेबल्ड होता है। तो अब अगर हम 21 को नए सेंसस से जोड़ेंगे तो ये होपफुली 6-7% जाएगा। और समस्या ये है कि आपने बात की आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की, ठीक है, मेरे में आत्मविश्वास है, बट आई एम नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू सोशल एंड एटीट्यूडनल बैरियर। और इससे इस जो समाज का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास या सहभागिता नहीं होगी, और जब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहभागिता नहीं होगी तब तक आत्मसम्मान नहीं आने वाला। और जब तक इस कम्युनिटी को हम प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, जब तक इनको सोशली, इकोनॉमिकली हम लोग आगे नहीं लाएंगे, तब तक हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में, हमारे जीडीपी की ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाने चाहिए। उसको लेकर के आपका क्या नजरिया है और सरकार क्या सोच रही है? थैंक यू। थैंक यू सो मच। Can I please have you, ma'am? जी सर। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमपी यंग थिंकर्स मीट में उपस्थित हो सकी। मेरा क्वेश्चन रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, R&D के बारे में। जैसे कि श्री राम माधव जी सर ने बोला कि आज चाइना, इजराइल और जापान इतना अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनका इनोवेशन और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बहुत ही सॉलिड है। बट मैं ये बात पूछना चाहती हूँ आपसे, जब हम जीडीपी का शेयर देखें तो रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर में हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है जितना चाइना, जापान या इजराइल के पास है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हमारे काफ़ी जो इतने इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं आज के, बहुत लोग बाहर यूएस में जाके काम कर रहे हैं। आईटी प्रोफेशनल, साइंटिफिक जो भी हमारा माइंड है वो आजकल बाहर डाइवर्ट हो रहा है। तो हम कैसे, जैसे आप ये कॉन्सेप्ट्स आपने बोले, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट हम रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर में कैसे ला पाएंगे, कैसे हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि वो हमारे देश में रहें और देश के लिए काम कर सकें? तो यही क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू सो मच। तो स्किल लिंकेज टू इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। तो इसमें इंडस्ट्री बॉडीज को काफी रोल लेना पड़ेगा। CII है, फिक्की है, इस प्रकार के जो बॉडीज है, इनको काफी इसमें रोल अब लेना पड़ेगा। क्या है, अभी तक हमारा एजुकेशन वाज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू स्किलिंग अनलेस यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग और IIT। वहां है तो वहां लिंकेज ऑलरेडी है, वहां तो कैंपस रिक्रूटमेंट ही हो जाता है। बट एट द अदर लेवल्स
इंडस्ट्री को भी इनिशिएटिव लेकर इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्ट करके रिक्वायर्ड स्किल सेट्स को वहां डेवलप कराना पड़ेगा उन इंस्टीट्यूशंस में। उसके थ्रू ये अरेंजमेंट होना पड़ेगा। देश में कई स्थानों में, विशेषकर पुणे है, मुंबई है, बेंगलुरु है, ऐसे स्थानों पर इंडस्ट्री स्वयं ऐसा प्रयास करता है। इंडस्ट्री सेलेक्ट्स सम इंस्टीट्यूशंस, प्रोवाइड्स बेसिक नॉलेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्किल, एंड वो स्किल के आधार पर उनको ऑब्जर्व करता है। इस प्रकार के लिंकेजेस को आने वाले दिनों में और बढ़ाना पड़ेगा। ये जरूर एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जिसको हमको पूरा करना पड़ेगा। उसमें इंडस्ट्री को रोल लेना पड़ेगा। as far as our Divyang friends, that question is concerned, it's again, as I said, it's a question of our attitude. इस देश में अभी भी 70 साल के आजादी के बाद भी सामाजिक दृष्टि से भी एटीट्यूड पूरा बदला नहीं है। मुझे ये ऑन रिकॉर्ड भी कहते हुए कोई शंका नहीं है कि आज भी हमारे यहाँ सामाजिक उच्च नीच की भावना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। पब्लिकली आप नहीं कर सकते हो, यहां हाल में बैठे हैं तो कौन किस जाति का है पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि पूछने पर आपको जेल भेज सकते हैं। देयर इज ए पनिशमेंट फॉर एनी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर पब्लिकली। मन से गया क्या? मैं आपको कह सकता हूं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर फलाना जात का है तो कई घरों में किराया मिलेगा नहीं घर। मन से गया नहीं है, आज ये मन से जाना पड़ेगा। सामाजिक एकता स्लोगन नहीं है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले दिन यानी 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन हुआ 1949 में, 25 को उनकी आखिरी भाषण हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। उस भाषण में उन्होंने 3 वार्निंग्स दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है पर इसके सामने 3 खतरे हैं। उसपे एक खतरा उन्होंने कहा, जब तक भाईचारा नहीं आएगा देश में, वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 स्लोगन्स को उन्होंने उल्लेखित किया, फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और अंबेडकर ने कहा फ्रीडम, हमने तो अंग्रेजों को भगाया तो मिल गया। इक्वालिटी, हमने कानून घोषित कर दिया, ऑल इंडियंस आर इक्वल, सबको एक वोट दे दिया, इक्वालिटी आ गई। बट फ्रेटर्निटी यानी भाई भाई की भावना, भ्रातृत्व भावना, ये कानून से नहीं आएगा। क्या हम कानून से डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप सब भाई बहन हैं? ये होगा नहीं। ये सोसाइटल एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इसके लिए सामाजिक संगठनों को काम करना पड़ेगा, राजनीतिक संगठन, बीजेपी को, कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो बहुत महत्वपूर्ण बात हमारा भाई ने कहा दिव्यांगों के विषय में, हम आजकल डिसेबल्ड नहीं कह रहे, हैंडीकैप्ड शब्द भी नहीं प्रयोग कर रहे, दिव्यांग कह रहे हैं। पर उस समाज के प्रति केवल करुणा नहीं, पिटी नहीं, एक सम्मान की भावना, एक डिग्निटी की भावना समाज में बनना बहुत जरूरी है। मैं तो ऐसे ऐसे केसेस जानता हूं, सरकार में कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम मानकर चलते हैं कि ही इज हैंडीकैप्ड और शी इज हैंडीकैप्ड, शी इज नॉट फिट टू डू सो एंड सो जॉब। भाई हैंडीकैप एक अंग का है ना, तो आप क्यों कंक्लूड कर रहे हैं कि बाकी कोई काम नहीं कर पाएगा? वैसे दिमाग से हैंडीकैप्ड तो देश में भरे पड़े हैं, उनका क्या किया जाए? तो एक सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा आयाम है, डायमेंशन है हमारा, जो जैसे मैंने कहा दलित समाज, अनुसूचित समाज, SC ST समाज के प्रति दृष्टिकोण है, ऐसे ही दिव्यांगों के प्रति दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है। और अंतिम R&D का विषय मैंने इसलिए जिक्र किया भी था मेरे भाषण में कि ये एक एरिया है जिस पर हमारा बहुत कम ध्यान अभी तक है। केवल थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इनोवेशन होता है, R&D होता है। हम सॉफ्टवेयर में तो बहुत आगे हैं। आजकल फार्मास्यूटिकल्स एरिया में भी इंडिया R&D में आगे है। वैसे तो आज कोविड ड्रग्स का वैक्सीन की तैयारी में हमारे 5-6 कंपनियां तो एकदम आगे है।
यानी ऑलरेडी वो ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू कर चुके हैं। बट जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारा आज भी बहुत कम है। आज वो इंस्टीट्यूशंस बनने, जैसे मैंने कहा, आज भी इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब नहीं है आज भी। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो 5G आएगा, 5G आने के बाद तो ये टेबल यहां से इधर करना है तो टेक्नोलॉजिकली करेंगे, वो 4 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का टेक्नोलॉजी आएगा, सब कुछ, एंटायर मोबिलिटी विल चेंज, एंटायर मोबिलिटी विल बी सैटेलाइट गाइडेड। तो ऐसे दुनिया में जाते समय R&D का बहुत बड़ा रोल होता है। आज उस दिशा में मैं जरूर समझ करता हूं वो बेटे से जिसने वो प्रश्न उठाया, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में अगेन मैं कहता हूं, सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होना है। सरकार जो R&D करेगी, हालांकि सरकार का ही बहुत रोल होता है, बट साथ साथ हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स में हम आज दुनिया में R&D में आगे है, तो सरकार के कारण नहीं। सरकार का IDPL तो बहुत ज्यादा कुछ करता नहीं है, बट करते हैं हमारे प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी R&D में आज आगे है तो सरकार के कारण नहीं। सरकार के बाहर का प्राइवेट, वो जो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, वो जो कंपनीज करते हैं R&D, वो जो डेवलप करते हैं, उससे आज इंडिया का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। वैसे तो मैं मानता हूं R&D में भारत को दुनिया में नाम आया तो सरकार के कारण नहीं, इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट आया है, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। ये अंग्रेजी ठीक समझने वाले इसका समझ ले, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ऑन कैमरा। इट्स इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट हमने इतना बड़ा नाम कमा लिया है। पर इसलिए आज R&D पर भी हमको बहुत ध्यान देना है। इसलिए हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, R&D को एक बहुत बड़ा रोल के रूप में देख रहा है, उसको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देने का प्रयास भी हो रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी मिलेंगे। समय सीमा को देखते हुए हम सिर्फ एक प्रश्न और वर्चुअल ऑडियंस से लेंगे। मैं यश चतुर्वेदी जी आपसे अनुरोध करती हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello. Good evening, all the dignitaries. Good evening, all the dignitaries. So my question is to Dr. Chauhan sir. Sir, as MP is one of the prominent states which contributes to the greater part of tourism of India. As now in this COVID situation, economic crisis has arisen. Can we go with the policy to charge a one-time pay from the tourists to maintain the hygiene and cleanliness in the state, which will contribute to a larger part in the state's treasury, as well as to maintain the sanitization and hygiene efficiently in the form of sanitization tax? Thank you very much for your question. And let me first of all explain during the COVID time, the Income Tax Department has taken initiatives under the guidance of the Honorable Finance Minister that we have extended all the deadlines and time limits for all compliances for the month of September and December, and thereafter March 2021. Similarly, in terms of considering the COVID situation, our emphasis, particularly here in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Pan-India, has been to provide that kind of liquidity to the taxpayers, and therefore we have here in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, in these 3 months, have issued refunds to the tune of 2,000 crores. So therefore, we understand the situation, the COVID situation, and the issues which are being faced by the taxpayer, and therefore we are all committed to provide the ease of working and giving the comfort level and raising the, as I say, always say, raising the HQ of my taxpayers is my motto. The HQ is the happiness quotient of my taxpayer, and therefore this is one aspect of it. Now, coming on to the second part of your question, that was regarding the Swachhatha and
the cleanliness drive. Now, when I call about Swachhata, it is as Sri Madhavji has just said, it is the mental hygiene one has to really concentrate on. The physical hygiene would automatically come through. And therefore, what is required at the moment with youngsters and all of us here in the society here, that we have to change our mindset towards Swachhata, cleanness. We take pride to be part of Madhya Pradesh being the cleanest city. That was Indore having number 1 position and Bhopal having earned number 2 position. And therefore, this is a matter of pride for Madhya Pradesh. We from the department also have been espousing the cause of hygiene and cleanliness, Swachhata Abhiyan in Madhya Pradesh. And we had launched a drive, special drive, where we had taken the cleanliness drive of all the ghats in Narmada, right from Amarkantak to Jabalpur and down Hoshangabad, right up to the downstream. Similarly, we had undertaken a lot of, we call it as DSR. We have heard of CSR, but I call it as DSR, Departmental Social Responsibility, where we want to give it back to the society, that we are not just the tax collectors, but we also have a responsibility toward the society. So, sir, we had gone in for a massive plantation drive here in Madhya Pradesh. We had gone for free medical camps, 35 medical camps during the last Foundation Day ceremony. Similarly, we had blood donation camps, and we had also adopted one government school here in Madhya Pradesh for e-learning program. So we want to connect with the people, and therefore the perception about the department, I want the perception of the department to change, and we all can make the difference. Thank you. Thank you, sir. May I now request Shri Amitabh Soni ji to please deliver vote of thanks. नमस्ते, सभा में उपस्थित सभी मित्रों का धन्यवाद. Dais पे the dignitaries on the dais, Mishra sir, Ram Madhav ji and Chauhan sir, thank you so much for being here. नरोत्तम मिश्रा जी, आप बोले नहीं, लेकिन आपके आने से हम लोगों को बहुत संबल मिला है, उसको प्रदान करने के लिए धन्यवाद. Friends who joined us online, thanks to you, thanks a lot. And I would like to thank the core team which has put up this show. It was really difficult. May I request you to come on the stage for 5 seconds? Please be here so that people can identify you and understand how this work has happened. Nimesh, Rohit has played a pivotal role, the young man who introduced the program. Alok Dangas ji, please come on the stage next to... Please make it quick. I think our dignitaries wish to leave at some point. Shah Rukh Khan, Anil Pillai ji. Thank you. Yeah. Social distance. Thank you finally to Jahanuma management. Vinod ji, thank you. Gaurav Rege, thank you so much. And last of all, I'll make it really quick. Not many people know that these discussions and these symposiums that happen all over India now, there's one person who has taken these debates and discussions to a next level. He never claims that he's done it, but I've seen it firsthand happening outside India when we were not in the government. And that gentleman is Honorable Ram Madhav ji. I've been privy to that when we were in London. I had the privilege and the honor of chauffeuring him to different academics. Even the churches, we open dialogue and debates with everyone. So Ram Madhav ji, thank you so much for that. And as it is said that the leader never takes credit, but dharma comes into play and credit never leaves the leader. Thank you so much, very much. So, thank you, Amitabh Bhaiya. Thank you so much. I would request you all to please stand up for the national anthem, please. National.
गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय. Thank you so much. Have a very good evening. Namaskar, Jai Hind, Jai Kisan.